Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Dimple Nankani and we continue with the series of geography crash course. This is important for your upcoming prelims examination. आज का जो लेक्चर डिस्कशन है वो लैंडफॉर्म्स पे है। हम डेजर्ट लैंडफॉर्म्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगले दो वीडियोस आपके बाकी सारे लैंडफॉर्म्स का लैंडफॉर्म्स ऑफ रिवर, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर एज वेल एज वेव्स। आज का डिस्कशन इज ऑन डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। सो लेट्स बिगिन विद द डेजर्ट लैंड। अगर हम देखें तो डेजर्ट्स में विंड बहुत पावरफुल एजेंट होता है, द एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन, जो कि इरोड करता है, डिपॉजिट करता है, शेप करता है वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑफ द डेजर्ट्स। अगर हम एक स्टैट देखें तो नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंडस्केप इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट. So you have 20% of the Earth's landscape that is shaped by the winds. Desert की कुछ conditions होती हैं. The conditions of deserts are like, we have conditions like the absence of vegetation, there is very low precipitation, बारिश काफी कम होती है, बाकी वेजिटेशन बहुत मॉडिफाइड होती है, वहां पे विंड मेजर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है जो इरोड करता है, डिपॉजिट करता है, डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी विंड्स होती है, आपकी सैंड का डोमिनेंस होता है, कई बार डेजर्ट में बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है जिसको हम टोरेंशियल डाउनपोर्स या टेरेंशियल रेनफॉल कहते हैं, वो भी डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स को शेप करते हैं. So let's look at the desert and the landforms. What is a desert? Desert basically 20% of Earth's land is occupied by desert. Characteristics are that you have less than 25 centimeters of rain. There is practically absence of the vegetation. You have a very high annual range of temperature and daily range of temperature. सुबह बहुत ज़्यादा आपका गर्मी होता है और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाता है. And even in the summers it is very very hot, it is very very cool in the winters. So we have annual range of temperature, greater annual range of temperature as well as greater daily range of temperature. आपकी dust storms और high velocity winds होती है. You have high velocity winds, you also have dominance of sand, you have occasional torrential rainfall. ये आपकी deserts की general conditions होती है. When I talk about the deserts, there can be various types of deserts. You can have deserts like rocky deserts, you have sandy deserts, you have stony deserts. तो आपके काफी सारे deserts के landforms हो सकते हैं, आपके काफी type of deserts हो सकते हैं. As you can see, ये है आपका rocky deserts. यहाँ पे कई आपको बड़े 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 rocks दिख रहे हैं. ये इसको हमादा भी कहते हैं. There are majorly 5 types of desert. First is the rocky desert. Then you can see the stony deserts. काफी स्टोन दिख रहे हैं आपको, रॉक्स नहीं पर छोटे छोटे स्टोन्स दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेग. देन यू आल्सो हैव सैंडी डेजर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज अर्क. यू हैव हमादा, रेग एंड अर्क, रॉकी, स्टोनी एंड सैंडी. ये वही डेजर्ट है जो आप जनरली सॉन्ग्स में सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है कि यस ये दिस इज शोन इन योर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर दैट इज शोन इन द मूवीज. Then you have another two major types of deserts apart from sandy, stony and rocky. You have deserts like the badland topography, जिसमें cultivation is nearly impossible. ये चंबल की घाटी में आप देखेंगे, चंबल badland. This is the badlands. ये जो आपको figure दिखा रहे हैं that is of USA. And you can also have a desert along the mountain slopes that are called as the mountain deserts. So 5 major types of desert: sandy, stony, rocky. You have mountain deserts and you have the badland topography. What is a desert? हमने देख लिया. दैट उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि बारिश कम होती है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा. You have you have torrential downpour, torrential rainfall. There can be major 5 types of deserts, 5 types of deserts like reg, erg, amada, mountain deserts and the other thing. As we move on, weathering देख, हम डेजर्ट देख रहे थे, डेजर्ट के टाइप्स देख रहे थे. अब डेजर्ट में विंड काम क्या करता है, विंड और टेम्परेचर चेंजेस के कारण होता क्या है, कैसे इरोजन होता है, कैसे वेदरिंग होती है, क्या जियोमॉर्फिक लैंडस्केप्स बनते हैं, क्या जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है जहाँ पे शेप होता है. तो यू हैव द फर्स्ट वन दैट इज वेदरिंग. वेदरिंग हमने पहले भी देखी थी. वन टाइप ऑफ वेदरिंग जिसके कारण एक यूनिक लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, वो अनियन पीलिंग भी कहते हैं. दिस इज योर अनियन पीलिंग, दिस इज योर वेदरिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सफोलिएशन. स्किन एक्सफोलिएट होती है, व्हेन यू स्क्रब इट आपकी न्यू स्किन आती है. जैसे ही आपको आपकी अंदर की स्किन दिखती है, जैसे ही आपको अंदर के रॉक्स मिलते हैं, इसीलिए इसको एक्सफोलिएशन भी कहते हैं. मेजरली ये होता क्यों है, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो ये रॉक है, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लेयर. द फर्स्ट लेयर
expands when heated and it contracts when cooled. As you have seen in desert, दिन में बहुत गर्म होगा, रात में बहुत ठंडा होगा, दिन में ये एक्सपैंड करेगी, रात को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर नेक्स्ट डे एक्सपैंड करेगी, फिर रात को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर एक्सपैंड करेगी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये वीक हो जाएगी और फर्स्ट लेयर गेट्स removed. This is called as the peeling of the layers, onion peeling or the exfoliation, the coming of the new layers, the opening up of the new layers, नई layers अब दिखने लगेगी, exfoliation। मोट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ये, जो रॉक्स को सॉइल में बना देता है या सैंड पार्टिकल्स बना देता है। ये हम अनियन पीलिंग होती है, इंटेंस हीटिंग होती है ड्यूरिंग द डे, कूलिंग होती है एट द नाइट, जिसके कारण आपके इवेंचुअली क्रैकिंग हो जाएगी। ये जो आउटर सरफेस है ये काफ़ी रैपिडली एक्सपैंड करेगा, इनर लेयर कूल करेगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, आपकी चीज़ें सक्सेसिव लेयर में निकलती जाएंगी। ये इसके कारण यू हैव दी वेदरिंग, दैट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण सैंड पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स बन जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। This was what? This was the weathering of the rocks that was happening. That is, आपके डेजर्ट में क्या क्या आपके प्रोसेस होते हैं जिसके कारण आपके सैंड पार्टिकल्स बनते हैं। मूविंग ऑन अगेन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट वाज वेदरिंग, द सेकंड इज इरोजन। कि इरोजन कैसे काम करता है डेजर्ट में, डेजर्ट होता क्या है, डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेजर्ट में विंड क्या काम करती है, और डेजर्ट में क्या क्या वेदरिंग और इरोजन होता है, हमने ये देखना है। इरोजन जो होता है वो विंड इरोड करती है। विंड कैसे इरोड करती है डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स को, इसको समझते हैं। 3 मेजर प्रोसेस होते हैं, वन इज डिफ्लेशन, द सेकेंड वन इज एब्रेजन एंड द थर्ड इज एट्रीशन। आप मैंने कुछ एक्शंस किए हैं उससे आप समझ जाएंगे, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है एब्रेजन और एक होता है एट्रीशन। इसको समझते हैं। सबसे पहले डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन इज एन ऑपोजिट वर्ड ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन ऑपोजिट वर्ड होता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, कोई भी चीज बढ़ती है, डिफ्लेशन में क्या होता है, कोई भी चीज घटती है। हम डिफ्लेशन में क्या देखेंगे, वी विल सी दैट, you can see this GIF, you'll see this, you have sand particles, you have rocks here, you can see that the wind is blowing, as the wind is blowing, जैसे जैसे wind blow करती है वो क्या करेगी, sand के particles को pick करती हुई चली जाएगी, it will pick the sand particles, as it is picking up the sand particles, the layer of the sand is reducing, okay, the layer of the sand you can see is reducing, this is happening because of the deflation. So this is your sand, you have the winds picking up the sand. As the wind pick up the sand, there is less amount of sand particles that is left. There's less amount of the sand particle that is left. So we are talking about deflation. Deflation basically is derived from a Latin word which means blowing away. इसमें क्या हो रहा है, there is a process जहाँ पे remove हो रही है, lift हो रही है और blowing off हो रही है of dry and the loose sand particles. So dry and loose sand particles are being blown away. That is called as deflation. They are being blown away by the winds. This because of deflation. If there is continuous deflation, so there is this deflation that is happening. You can see that आपका एक water table तक आपका deflation हो सकता है। आपका deflation हुआ, wind sand particles को लेके चली गई और आपकी ये water table तक आ गई। So the continuous deflation will lead to depression. छोटे छोटे डिप्रेशन बन जाएंगे, इसको आप डिफ्लेशन हॉलोज भी कह सकते हैं, इज आल्सो कॉल्ड एज डिफ्लेशन हॉलो। दिस बेडरॉक्स आर आल्सो एक्सपोज्ड टू विंड एब्रेशन, तो विंड का एब्रेशन भी हो रहा है। फर्स्ट हमने देखा, द फर्स्ट वन वाज व्हाट, द फर्स्ट वन वाज डिफ्लेशन। विंड कैसे इरोड कर रही है लैंडफॉर्म को, क्योंकि विंड पिकअप कर रही है सैंड पार्टिकल्स। तो विंड पिकअप कर रही है सैंड पार्टिकल्स, तो सैंड पार्टिकल्स का हाइट कम होता जा रहा है। सैंड पार्टिकल्स का हाइट कम होता जा रहा है तो आपके हॉलोज या गड्ढे बनते हैं, जिसको आप डिफ्लेशन हॉलोज कहते हैं। सेकेंड वन इज एब्रेशन। आई टॉक अबाउट एब्रेशन, व्हाट हैपेंस इन एब्रेशन। ये एब्रेशन यानी क्या, जब विंड चलती है, विंड सैंड पार्टिकल्स तो लेती चलती है, बट विंड अपने साथ कुछ रॉक्स भी लेती है। ये जो रॉक्स हैं ये कोई भी एक लैंडफॉर्म को तोड़ सकते हैं। ये जो तोड़ते हैं इसको बोलते हैं एब्रेशन। एब्रेशन का अगर हिंदी में कुछ शब्द समझने की कोशिश करें, एब्रेशन का मतलब होता है खरोचना। you try to scratch it. As you're trying to scratch it, who's trying to scratch it? You have the rocks that is trying to scratch the landforms.
You can see when the wind blows, जब wind blow करती है तो अपने साथ कुछ पत्थर लेके चलती है. As it tries to take these stones, as it tries to take the stone, it is trying to erode the landform. ये landform को तोड़ते हुए चलती है. और landform का size क्या हो जाता है? landform का size है छोटा. तो ये जो landform का छोटा size हो जाता है होते हैं aberration. So what is aberration? Aberration is that wind that are armed with the sand grain, the wind that are armed with the rocks, they erodes the landscape. This is called as sand blasting. सैंड ब्लास्टिंग भी कहते हैं कि सैंड ब्लास्ट कर रही है आपके लैंडफॉर्म्स को. इसका मेजरली अगर हम एब्रेशन देखें, इफ आई टॉक अबाउट एब्रेशन, मेजरली एब्रेशन आपकी मिडिल लेयर्स में काम करता है. इफ यू लुक एट द एब्रेशन, आई डिवाइड दिस लैंडस्केप, I divide this landscape into, let's say, 3 layers, 1, A, B, and C. So let me take a pause here so that your PPT is not, GIF is not working. That will help us better understand the diagram. So look at this figure. I can divide this. Figure into 3 layers. The layers like A, B, and C. Let us understand this. I'm trying to divide the figure into layer A, layer B, and layer C. This is layer A, this is layer B, and this is layer C. The topper one is C. अगर आप एब्रेजन देखेंगे तो एब्रेजन आप देखेंगे सबसे ज्यादा बी लेयर में इफेक्टिव होता है. इट इज द मिडिल लेयर where the abrasion is most effective. It is the middle layer that gets erode the most. एब्रेजन जो होता है ये सबसे कम होता है ग्राउंड पे यानी ए लेवल पे, क्योंकि स्पीड विंड की इतनी नहीं होगी. एब्रेजन 2 चीजों पे डिपेंड करता है. विंड किस स्पीड पे ब्लो हो रही है तभी वो इतना पार्टिकल को हिट कर पाएगी, और विंड के पास कितने स्टोन है. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन कितना स्टोन कैरी कर रहे हैं और दूसरा कितना स्पीड है. अगर आप लैंडफॉर्म को समझे, ए लेयर, बी लेयर एंड सी लेयर, विंड में स्पीड सबसे कम ए लेयर में होगी क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. और अगर सी लेयर में देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफी सारे रॉक्स पार्टिकल्स नहीं है क्योंकि विंड ज्यादातर रॉक पार्टिकल्स ग्राउंड की तरफ ले. तो क्योंकि बी में दोनों है, स्पीड भी है, फ्रिक्शन कम है तो स्पीड भी है, और काफी सारे स्टोन भी है, तो सबसे ज्यादा इरोड होती है आपकी बी लेयर. ए लेयर क्यों नहीं इरोड हो रही है? क्योंकि रॉक्स तो हैं पर स्पीड नहीं है. स्पीड क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन उसकी स्पीड को रिटार्ड करता है. तो ए लेयर में कम इरोजन होता है, सी लेयर में भी कम इरोजन होता है क्योंकि स्पीड तो है सी लेयर के लिए, बट सी लेयर में स्टोन्स नहीं. सबसे ज्यादा इरोजन आपका होता है बी लेयर में. when we say the wind abrasion is minimum at the ground level, सबसे कम आपकी ग्राउंड लेवल पे होता है क्योंकि विंड का वेलोसिटी इज रिटार्डेड बाय फ्रिक्शन. आपकी 182 सेंटीमीटर यानी समझो लेट्स से 10 सेंटीमीटर, उसके ऊपर विंड आपको पार्टिकल्स को, रॉक्स को लिफ्ट नहीं कर सकती. इसीलिए एब्रेशन सबसे ज्यादा काम करता है 20 से 25 सेंटीमीटर में ग्राउंड के सरफेस के ऊपर. 20 to 25 सेंटीमीटर में सबसे ज्यादा एब्रेशन काम करता है. नीचे नहीं करता क्योंकि स्पीड नहीं है, ऊपर नहीं करता क्योंकि रॉक पार्टिकल्स नहीं है. आपके लिए एब्रेजन समझना जरूरी था, और एब्रेजन के कारण कुछ आपके यूनिक लैंडफॉर्म्स आते हैं वो हम देखेंगे. ये एब्रेजन इज द रीजन कि आप देखोगे कि टेलीग्राफ पोल को हम मेटल से कवर करते हैं नीचे ऑन द फुट. सो एट द फुट द टेलीग्राफ पोल इज कवर्ड बाय द मेटल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा? एब्रेजन होगा. एब्रेजन होगा तो क्या होगा? वो इरोड करेगा. तो 3 टाइप के इरोजन है. वन इज डिफ्लेशन, second is aberration, the third is attrition. If I talk about attrition, attrition मतलब टूट जाना, aberration यानी तोड़ना, attrition मतलब खुद टूट जाना. तो जब विंड ये कई सारे रॉक्स को लेके चलती है तो ये रॉक्स पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और फिर क्या होता है? ये छोटे 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 पार्टिकल्स टूट can break into the smaller particles. This is your aberration. So rock particles, they can actually break into smaller particles because the rock particles are hurling against one another. They are touching one another. They are colliding against one another. So that is your atterration. What is atterration? जो mechanical wear and tear होता है जब transport हो रहे हैं sediments by themselves. So these particles, they collide against each other and they are reduced to the finer particles. तो इसको बोलते हैं atterration. तो wind erode करता है through 3 processes: deflation, aberration and atterration. Moving on, we were talking about what? We were talking about deserts. What are deserts? What are the characteristics of deserts? क्या टाइप के deserts होते हैं? डेजर्ट में वेदरिंग कैसे होती है?
वेदरिंग के साथ साथ डेजर्ट में इरोजन कैसे होता है। अब इरोजन कई सारे लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा। कुछ फेमस लैंडफॉर्म्स हैं जैसे कि मशरूम रॉक्स, आपके डिफ्लेशन हॉलोस, Ventifacts and Drey Cantor. You have Inselberg. We have Mesa Buttes and Pinnacles. So you have these major 5 landform erosional landforms. Let's look at one by one. सबसे पहले मशरूम रॉक समझते हैं। आपने मशरूम का जैसे शेप देखा होगा, वैसे ही डेजर्ट में कई सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे मशरूम के शेप में आपको दिखते हैं। तो ये मशरूम के शेप में आपको डेजर्ट में लैंडफॉर्म दिखते हैं। तो ये मशरूम के शेप में होते क्यों हैं, इसको हमें समझना है। अगर आप देखें तो ये वही है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है और ये सी लेयर है। ठीक है, ए लेयर में कम इरोजन हो रहा है। समझिए एक ये लैंडफॉर्म था, ये लैंडफॉर्म में ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर है। ए लेयर सरफेस के पास है, बी लेयर बीच में है और सी लेयर ऊपर है। अब इस पे क्या हुआ, इस पे आपका विंड ने अपना रॉक्स को यहाँ पे रॉक्स की मदद से इस लैंडफॉर्म को तोड़ने की कोशिश की। विंड ने रॉक्स की मदद से इस लैंडफॉर्म को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जब ये तोड़ेगा तो सबसे ज्यादा कौन सी लेयर तोड़ेगा, बी लेयर। तो क्या हो जाएगा आपका लैंडफॉर्म, लेट्स से यहाँ पे ए लेयर इतना बचा, बी लेयर इतना बचा और सी लेयर इतना बचा। आपका लैंडफॉर्म का शेप क्या हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट द विंड इज ट्राइंग टू इरोड द लैंडफॉर्म, द विंड ट्राई टू इरोड द लेयर, try to erode this layer, we try to erode the landform, and the kind of landform that is actually remaining after erosion, kind of landform that is actually remaining after the erosion is a mushroom rock. इसमें बी लेयर काफी इरोड हो चुकी है, ए लेयर बची है और सी लेयर भी बची है, तो ये मशरूम की शेप में आ जाता है, called as the mushroom rocks. What is a mushroom rock? It is a rock that has a shape of a mushroom. Why shape of the mushroom? Because the B layer gets eroded the most. Suppose this was the original landform, कैसे था, but B layer सबसे ज्यादा erode हो गई, B layer आपकी ऐसे बची है और A और C अभी कम erode हुई है, A और C आपकी बची है। So what is a mushroom rock? Mushroom rock is basically a rock that has a broad upper, and a narrow base. That is a broad upper base. इसका upper base बहुत broad है और इसका narrow base होता है lower पे। ये मशरूम की तरह होते हैं। इसमें मेजरली एब्रेजन काम करता है। एब्रेजन सारे तरफ से विंड और ब्लॉक को तोड़ रहा है। एब्रेजन का जो हाइट है वो 6 फीट तक ही लिमिटेड, इसीलिए लेसर पार्ट जो होता है वो कम अफेक्ट होता है। ऊपर वाला पार्ट अफेक्ट नहीं है, नीचे वाला पार्ट अफेक्ट नहीं है और बीच वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट है, इसलिए आपका मशरूम का शेप बन जाता है। तो आपका ये फर्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म, दैट इज योर मशरूम रॉक। मूविंग ऑन, सेकंड इरोजनल लैंडफॉर्म, दैट इज योर डिफ्लेशन हॉलोस। व्हेन आई टॉक अबाउट डिफ्लेशन हॉलोस, वी हैव ऑलरेडी सीन, ये आपका रीजन है, इस पे आपका विंड काम कर रहा है। विंड आपका ये पार्टिकल्स को उठाते हुए लेके चल रहा है। एज द विंड इज ट्राइंग टू लिफ्ट द पार्टिकल्स, as the wind is trying to lift the particles, you will see that there are certain depressions that are created. ये wind जो है ये particles को उठाते हुए लेके चल रहा है, तो आपका कुछ depression आपको यहाँ पे दिखेगा। ये क्या है, deflation। hollow मतलब depression होता है। हुआ क्यों है, क्योंकि deflation हुआ है, यानी कोई चीज उठाई गई है और कम की गई है, तो डिफ्लेशन हॉलो भी कहते हैं। इसको डिफ्लेशन बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि बेसिन के टाइप दिख रहा है। इसको ब्लो आउट भी कहते हैं, बिकॉज समथिंग हैज बीन ब्लोन आउट। और इसको आप डेजर्ट हॉलोज भी कहते हैं। डेजर्ट में कुछ हॉलो सर्फेसेस हैव बीन क्रिएटेड। तो ये है आपका डिफ्लेशन हॉलो। अगर हम डिफ्लेशन हॉलो की बात करें, तो जो डिप्रेशंस बने हैं डेजर्ट में, क्यों बने हैं, क्योंकि सैंड ने पार्टिकल्स को रिमूव किया है। जो डिप्रेशंस हैव बीन फॉर्म बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द सैंड पार्टिकल्स through the process of deflation. The size of these depressions कैसे भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है डिप्रेशन या बड़ा भी हो सकता है। The size of the depression can vary from smaller ones like buffalo valleys, जिसको नाम बोलते हैं, buffalo valley भी बोल सकते हो, blowout भी बोल सकते हो, डिप्रेशन हॉलो भी कह सकते हो, डिफ्लेशन हॉलो भी कह सकते हो, डेजर्ट हॉलो भी कह सकते हो। आप इसको आप buffalo wallows भी कहते हो। There's a different name। का एक एग्जाम्पल है जैसे कि कतारा डिप्रेशंस ऑफ इजिप्ट।
Katara depression of Egypt is nothing but a deflation hollow. The wind has moved, wind has lifted up the particles, the wind has created a hollow. This is called as the deflation hollow. So we were looking at the second landform, second erosional landform, that is your deflation hollow. पहले देख लिया mushroom rock, फिर अब देख रहे हैं deflation hollows. The third important landform is the ventifact or Drey-Cantor. What is a ventifact and what is a Drey-Cantor? So if I talk about ventifact और Drey-Cantor, अगर आप कभी डेजर्ट्स में गए होंगे तो आपको इतने प्यारे आपके ऐसे रॉक्स आपको दिखते हैं. दैट इज ये रॉक्स जो होते हैं उनके साइड्स पे से स्टीप फेस होता है, साइड में ऐसे स्टीप फेस होता है, साइड में ऐसे, तो रॉक पूरा गोल नहीं होता है, आपके रॉक्स पे से स्टीप फेस होता है. यहाँ पे भी स्टीप फेस, यहाँ पे भी स्टीप फेस, यहाँ पे भी स्टीप फेस. तो ये जो स्टीप फेसेस हैं ये क्यों बनते हैं? क्योंकि विंड इनको इरोड करता है. विंड कैसे इरोड करता है वो हम देखेंगे. तो आप इस GIF से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सपोज दिस वाज अ रॉक, यहाँ विंड ने इनको शेप किया, तो विंड ने क्या किया, यहाँ पे आपका स्टीप फेस बना दिया. सपोज ये रॉक घूम गया विंड के कारण या ऐसे भी घूम गया, एक तो इसका स्टीप फेस रह गया. अब क्या होगा, यही डायरेक्शन में अगर विंड चल रही है और सैंड पार्टिकल्स लेती हुई चल रही है तो दूसरा फेस भी आपका स्टीप हो जाएगा. यहाँ पे समझ सकते हैं कि विंड कैसे ये फेसेस को स्टीप कर रही है. समझो एक और बार रॉक घूम गया तो दूसरा फेस भी आपका स्टीप हो जाएगा. व्हाट इज अ वेंटिफैक्ट एंड अ ड्रेई-कैंटर? Ventifact or a Drey-Cantor, basically it's about a very steep face the rock has. So rock boulders or pebbles, they are abraded by a long period of wind erosion. रॉक बोल्डर्स को आप काफी तरीके से इरोड कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड में आप इरोड कर रहे हैं, तो वो स्टीप फेस ले लेगा. कई बार तो वेंटिफैक्ट के कम से कम ऐसे 8 फेस स्टीप बन जाते हैं. दे हैव एब्रेडेड 8 एब्रेडेड फेसेस, जिसके 3 एब्रेडेड फेसेस होते हैं उसको आप ड्रेई-कैंटर कहते हो, जिसके 2 एब्रेडेड फेसेस है उसको आप ज़्वी-कैंटर कहते हैं. तो रॉक में इरोजन हुआ बिकॉज विंड ने रॉक पार्टिकल सैंड पार्टिकल से रॉक को तोड़ दिया और फिर ये रॉक का शेप चेंज, फिर ये रॉक का शेप चेंज होगा, फिर ये रॉक का शेप चेंज होगा. इसको आप बोलते हो वेंटिफैक्ट या ड्रेई-कैंटर या ज़्वी-कैंटर. अब ये इसलिए आपको ऐसे काफी स्टीप फेस वाले आपको रॉक्स दिखते हैं क्योंकि विंड उनको तोड़ रहा है, विंड इनको एब्रेड कर रहा है. फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर इसको स्टीप फेस किया, फिर इसको स्टीप फेस किया. दिस इज योर ड्रेई-कैंटर, ज़्वी-कैंटर या वेंटिफैक्ट. Moving on, the fourth erosional landform, which is a quite controversial landform, is your Inselberg. If I look at Inselberg, these Inselberg are very controversial. Why are they controversial? क्योंकि ये समझो डेजर्ट लैंडफॉर्म है और आपको बीच में ही ऐसा एक लैंडफॉर्म दिखेगा जिसका ऐसा स्टीप साइड है. तो पूरा डेजर्ट में बिल्कुल स्टीप फेस नहीं दिखा, पूरा डेजर्ट आपको प्लेन दिखा. यहाँ पे देख रहे हैं पूरा डेजर्ट प्लेन है, पूरा डेजर्ट प्लेन है और बीच में ही आपको एक ऐसा रॉक दिख रहा है. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज बॉर्नहार्ड. कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इसको समझा नहीं पाते हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं. These are quite controversial landforms. They are known as Bornhards. They refer to what? They refer to a sharp re-rising residual hill. एक sharp rising hill है, वो residual hill है, किसी ने तो तोड़ी हुई हिल है, जो बची हुई है वो आज आपको इंसेलबर्ग दिख रहा है. एक हिल था जो टूट गई, उसका बचा हुआ लैंडफॉर्म आज आपको दिख रहा है और आपको उसका जो फेस है काफी स्टीप साइडेड है, वो फ्लैट सरफेस के ऊपर उठता है. दे हैव अ स्टीप स्लोप एंड दे हैव अ राउंडेड टॉप. तो इनका टॉप जो होता है वो राउंडेड है और इनका स्लोप जो होता है वो स्टीप है. दे आर रेसिडुअल हिल्स एंड दे आर माउंट्स ऑफ द रिलेटिवली रेजिस्टेंट रॉक्स. बहुत ही यहाँ पे रेजिस्टेंट रॉक्स है, स्टीप स्लोप है, राउंडेड टॉप है, ये ग्रेनाइटिक है इन नेचर, हार्ड रॉक से बने होते हैं एंड दे आर नोवेयर देयर इज एनी हिल दैट इज रिमेनिंग. और बीच से ही आपको आपके कुछ रॉक्स दिखते हैं. तो कई समझाना आसान नहीं होता है, इसलिए कंट्रोवर्शियल लैंडफॉर्म है, इसको आप बॉर्नहार्ड्स भी कहते हैं. मूविंग ऑन, तो हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स में मशरूम रॉक, डिफ्लेशन होलोज, we also saw about the ventifacts and then we moved on to understanding about the Inselberg. के आगे बढ़ते हैं, एक और डेजर्ट का इरोजनल लैंडफॉर्म देखते हैं जो है आपका मेसा, बट्स एंड पिनाकल. सो व्हाट इज अ मेसा, व्हाट इज अ बट, व्हाट इज अ पिनाकल? If I talk about mesa, butt and pinnacle,
मेसा बेसिकली क्या होता है, मेसा का मतलब होता है, स्पेनिश में होता है टेबल। तो आपका प्लेटू का भी मतलब होता है टेबल लैंड। तो प्लेटू जब थोड़ा इरोड होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इरोड होगा, तो पहले आपका बनेगा मेसा, ये आपका बन गया मेसा। मेसा और इरोड हो गया, वो आपका बन जाएगा बट। बट और इरोड हो गया तो आपका बन जाएगा पिनिकल। यहाँ आप देख पा रहे हैं पिनिकल, ये है आपका मेसा, ये है आपका मेसा। ये पहले ऐसा प्लेटू था। मेसा का मतलब होता है टेबल। ये एक फ्लैट टेबल के जैसा लैंडमास होता है, जिसके हॉरिजॉन्टल लेयर काफी रेजिस्टेंट है और इसके साइड्स काफी स्टीप है। ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ड रॉक है। ये हार्ड रॉक आपको आपके लैंडफॉर्म को इरोजन होने से बचाता है, इसलिए वो पूरी तरीके से इरोड नहीं हो रहा और अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर पा रहा है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर जो है वो काफी हार्ड है, तो उसका ऊपर वाला लेयर हमेशा मेंटेन रहेगा और नीचे नीचे से वो इरोड होता जाएगा। इसका हार्ड रॉक है, ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है। और डिनोडेशन पूरी चीज को डेन्यूडेट होने से बचा देता है, पूरी चीज को खत्म होने से बताता है। और जैसे आप और इरोजन होता है, मेसा से बनता है बट, बट से बनता है पिनाकल। ये आपको कई बार डेजर्ट लैंडफॉर्म में दिखेंगे। तो हम मशरूम रॉक से लेके हमने डिफ्लेशन होलोस, मेसा, बट्स एंड पिनाकल्स, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट the landforms like the Inselberg and the Ventifacts and the Grey-Cantor. I am moving on to understanding the depositional landforms of desert. तो दो मेजर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। पहले तो इरोड हुआ, अब वो कहीं डिपॉजिट होगा। एक होता है ड्यून, एक होता है लोएस। ड्यून और लोएस, ड्यून बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपके पर्चन ड्यून है, आपका पैराबोलिक ड्यून है, यू हैव अदर ड्यून्स दैट वी विल सी। क्रेसेंट ड्यून, यू हैव दी सेफ, आपके बाकी सारे भी ड्यून्स हैं। पहले देखते हैं ड्यून होता क्या है और ये बनता क्या है। ड्यून क्या होता है? ड्यून इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड। तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ द सैंड है, क्यों एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है कि कोई भी ऑब्स्टिकल अगर बीच में आया तो उसके कारण आपकी रेत के ऊपर रेत चढ़ती जाएगी और ये आपका ड्यून बन जाएगा। बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड बिगिन होता है ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण, और फिर धीरे 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 ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन के का ड्यून बन जाए। तो इसके फॉर्मेशन के कंडीशंस क्या हैं? काफी सारा सैंड होना चाहिए, हाई वेलोसिटी की विंड्स होनी चाहिए। यू शुड हैव हाई वेलोसिटी विंड्स ताकि वो डिपॉजिट्स कर सके। कोई ऑब्स्टेकल जैसे रहा ट्री, बुश, फॉरेस्ट, वो भी बढ़िया है। और सूटेबल प्लेसेस चाहिए ताकि वो एक्यूमुलेट हो सके। कोई ऑब्स्टेकल आएगा, उस पर विंड ब्लो करेगा, आपका सैंड डिपॉजिट करेगा। एक बार सैंड डिपॉजिट किया तो वो भी ऑब्स्टेकल बनेगा, फिर और सैंड डिपॉजिट होंगे, फिर और सैंड डिपॉजिट होंगे और आपका ऐसे ड्यून बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द ड्यून्स दे आर नॉट स्टेबल, दे आर मोबाइल लैंडफॉर्म्स, और ये आगे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। दे जनरली मूव फॉरवर्ड। सो हियर यू हैव a dune. They will not remain at one place. The dune will also migrate. The dune keeps on migrate because wind आपके सैंड पार्टिकल्स को माइग्रेट करते हुए चलेगी, तो ड्यून भी आपका माइग्रेट करेगा। अलग अलग टाइप के ड्यून होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ड्यून होता है जिसको आप बर्चन कहते हैं। इसका अगर आप लैंडस्केप को समझें तो इसका लैंडस्केप ऐसा है कि आपका एक ड्यून है, इसके अपने विंग्स हैं, दे हैव देयर ओन विंग्स। So this is a dune which has a wing and the wings are directed away from the wind. इसके जो विंग है ये हवा के डायरेक्शन से उल्टी दिशा में है, इसको आप हॉर्न भी कहते हो। तो ये आपका सैंड ड्यून है जिसके हॉर्न जो है वो इस तरफ है, इस तरफ है, और ये हवा से उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर बर्चन्स? व्हाट आर बर्चन्स? दे आर क्रेसेंट शेप ड्यून। ये क्रेसेंट, you can see this, they are crescent shaped dunes, and इनके जो wings हैं, इनके जो points हैं, they are directed away from the wind direction. अगर wind direction ऐसे है तो ये दूर जा रहे हैं wind के direction से, wind के direction से away है, not towards the wind direction but away from the wind direction. और ये कब होता है? जब आपके पास काफी अच्छी सैंड हो और एक ऑब्स्टिकल हो। तो विंड का डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए और काफी आपके पास सैंड अच्छे तरीके से मूव हो रही है। इसको समझने के लिए आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ से आपकी विंड ब्लो हो रही है। एज द विंड इज ब्लोइंग, विंड गोज हियर, यहाँ पे थोड़ा इरोड करती है और फिर उसके बाद यहाँ डिपॉजिट करती है, इरोड करती है, फिर यहाँ डिपॉजिट करती हुई चलती है। You can see this eddies,
यहाँ पे योर विंड इज कमिंग, एज द विंड इज कमिंग इट इज ट्राइंग टू shape the it is trying to shape the landforms here you can see it is trying to erode the deposition here। तो आपका ये आया विंड, विंड ऐसे आया, विंड आपके सैंड ड्यून पे गया, जैसे सैंड ड्यून पे गया तो वो आपको सैंड ड्यून को शेप करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आपका सैंड ड्यून माइग्रेट भी करेगा और धीरे धीरे इसकी विंग्स बनती जाएंगी। और इसकी विंग्स कैसे डायरेक्टेड है? द विंग्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। विंड का डायरेक्शन ये है और विंग का डायरेक्शन ये है, ये हॉर्न का डायरेक्शन है और ये विंड का डायरेक्शन। सैंड ड्यून इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंग्स, द हॉर्न्स ऑफ द sand dune are directed away from the wind dune. These are the horns. This is the wind. The wings are or the horns are directed away from the wind. This was about your crescent shaped birchens. The second dune that you have is parabolic dune. इसका और birchen में सिर्फ इतना ही फर्क है। If I show birchen like this and I show wind direction like this. If I show parabolic dune, I show parabolic dune like this and I show the wind direction like this. यानी parabolics are nothing but they are reversed birchen। ये देखो wind का डायरेक्शन ये है और इसके स्लोप, इसके हॉर्न्स का भी डायरेक्शन वही है। तो इसके हॉर्न का डायरेक्शन और इसके विंड का डायरेक्शन क्या है? दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। विंग इस दिशा में आ रहा है और विंड इस दिशा में आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो ये क्या है? दे आर नथिंग बट रिवर्स्ड बर्चन। तो पैराबोलिक्स आर नथिंग बट दे आर रिवर्स्ड बर्चन, क्योंकि इनका विंड का डायरेक्शन और इनके हॉर्न का डायरेक्शन क्या है? दे आर सेम। So they have with wind direction being the same as the horn direction, So here this is about your parabolic dune. This was the type of dunes. We understood birchens and then we understood parabolic dune. अब समझते हैं सेफ क्या होता है। सेफ बेसिकली ये देखो, पहले ये है आपके birchens, क्योंकि इनके विंग का डायरेक्शन और हॉर्न का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, पास में नहीं जा रहे हैं। पर जब सारा टाइम इस पे विंड काम करेगी, ऐसा होगा कई बार कि इसका एक विंग बढ़ता चला जाएगा और दूसरा विंग घटता चला जाएगा, एक विंग बढ़ता चला जाएगा और दूसरा विंग घटता चला जाएगा। इसको आप सैंड ड्यून्स कहते हैं। लुक एट द सैंड ड्यून्स हियर, यू कैन लुक एट द सैंड ड्यून्स हियर। सो इफ आई टॉक अबाउट द सेफ, अब देख रहे हैं कि कैसे आप एक विंग का डायरेक्शन बढ़ता चला जा रहा है। What is safe? Safe is nothing but birchen with a one difference that safe has one wing. safe के पास एक ही विंग है और birchen के पास दो विंग है। ये तभी होता है जब आपकी विंड की डायरेक्शन एक विंग को बढ़ाते हुए चल रही है, एक हॉर्न को बढ़ाते हुए चल रही है, एक विंड आपकी हॉर्न की डायरेक्शन को बढ़ाते हुए चल रही है। The lone wing of the safe can grow in height and can they go long. तो इसलिए इसके पास सिर्फ एक ही विंग। लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स फॉर्म व्हेन द सप्लाई ऑफ, कब बनते हैं ये? जब सैंड का सप्लाई बहुत पुअर होता है और विंड का डायरेक्शन बहुत कम होता है। दूसरा विंग इसीलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि सैंड बहुत कम है और विंड का डायरेक्शन कांस्टेंट है। So this is your third type of sand dune, that is your safe. So we saw birchen, we saw parabolic dunes and then we saw a safe. इसके अलावा एक और डिपोजिशनल फीचर है जिसको हम लोएस कहते हैं। लोएस आर नथिंग बट स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, छोटे सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो स्प्रेड अक्रॉस होते हैं इन द प्लेन रीजन, तो आप लोएस कहते हैं। लोएस इज लाइक अ येलो सॉइल, इट इज अ वेरी फाइन सॉइल, बहुत छोटे फाइन सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम द डेजर्ट्स, उसको हम एक जगह जहां वो डिपॉजिट होते हैं उसको कहते हैं लोएस। यू कैन सी ये पूरा लोएस है, इसको फाइन लूम कहते हैं। यहाँ पे काफी सारे डिपॉजिट्स हैं फाइन सेडिमेंट्स के हैं और ये काफी डेजर्ट से दूर में मिलता है। तो डेजर्ट से आपका विंड लेके चल रहा है पार्टिकल्स, जैसे जैसे विंड लेके चल रहा है पार्टिकल्स, धीरे पार्टिकल्स छोड़ता हुआ जाएगा और एक डायरेक्शन में बहुत ही फाइन पार्टिकल्स विंड के पास रहेंगे और विंड बस वो फाइन पार्टिकल्स को आप जमा कर लेगा। छोटे पार्टिकल्स को लॉन्ग तक लेके जा सकता है, इसलिए काफी दूर मिलते हैं आपके डेजर्ट से। एंड ये क्या है? बहुत ही येलो कलर का मटेरियल है, ये बहुत फर्टाइल मटेरियल होता है, बहुत ही, इसमें आप पानी अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इसमें होगा। ये काफी पोरस है, मतलब इसमें काफी सारे पोर होते हैं और उसमें पानी जमा होता है। ये आपका फीचर जो है, इसमें कोई भी फीचर नहीं दिखेगा, बस ये प्लेन
सैंड होगा, प्लेन सैंड होगा, और इस पे आपका काफी अच्छा एग्रीकल्चर होगा। चाइना में आप देखते हैं एक येलो कलर की लोएस है, जिसके कारण आपकी जो एक रिवर है वो भी येलो हो जाती है। इट therefore it is also called as yellow river. So this was about the landforms that are formed by the deserts. What are the landforms? What are the erosional landform? What is a desert? What are the conditions for the deserts? And what are the depositional landforms? This is from my side for today. I hope you like the video. For the videos which will carry the landforms of rivers, glaciers, karst, you have to stay tuned. We will cover this topic in full details. The images here, the GIFs here will help you visualize things in a better manner. This is from my side. All of you, bye bye. Take care.